Hello everyone, welcome to this new session on data interpretation. My name is Ashish and today we are going to discuss pie charts. Pie charts is one of the easier topics when it comes to data interpretation. So after attending this session you will have a beginner's level understanding of pie chart question. So let's start with solving the questions. We'll solve two sets of questions in this session. Both of them have been taken from the previous year CAT exams. So you'll realize that CAT will also ask you some easier question. ऐसा नहीं है कि CAT हमेशा difficult question ही पूछेगा. There are total 8 sets in DILR section, out of which one DI section would be pretty easy. So as I said, for a beginner's level, we'll start with some easier question. So let's have a look at the pie charts given in the question. The first pie chart says this is the distribution of materials in Ghosh Babu's body as a percentage of total body weight. So there is 70% water, 15% protein, other dry material 15% that. So that is the percentage breakup. Second pie chart says occurrence of proteins in different organs in Ghosh Babu's body. So there are skin, bones, muscles and other. उसका percentage breakup दिया हुआ. So as I said earlier also, arithmetic की knowledge is very important when it comes to solving DI questions. So percentage का session आप देख लीजिएगा जो कि available है हमारे channel पे. I am also giving the link in the description. Let's have a look at the questions also. So there are 4 questions. What fraction of Ghosh Babu's weight consists of muscular and skin proteins? Second, the ratio of distribution of protein in muscle to the distribution of protein in skin. Third, what percent of Ghosh Babu's body weight is made up of skin? And fourth, in terms of total body weight, the portion of material other than water and protein is closest to what? So these are the 4 questions we need to answer. So simple ratio, proportion and percentage के concept इसमें काम आएंगे. The first question, what fraction of Ghosh Babu's weight consists of muscular and skin proteins? तो muscular and skin proteins पे चले जाते हैं. तो प्रोटीन टोटल है 15%. उसके बाद प्रोटीन का ब्रेकअप दिया गया है, उसमें मस्कुलर एंड स्किन प्रोटीन इन दोनों की बात करी गई है. तो अगर मैं टोटल बॉडी वेट को 100 यूनिट्स कंसिडर कर लूँ क्योंकि परसेंटेज ब्रेकअप है, तो उसमें से प्रोटीन हो जाएगा 15 यूनिट्स और उसके बाद इस 15 यूनिट को फर्दर यहाँ पे ब्रेकअप किया गया है. तो दूसरे पाई चार्ट के लिए टोटल वैल्यू हो जाएगी 15 यूनिट्स और उस 15 का 25% है मसल्स और 8% है स्किन. तो दोनों को मिला के हो जाएगा 33%. और परसेंटेज वाले सेक्शन में हमने देखा था कि 33% इज ऑलमोस्ट 1/3. 33.33 होता है 1/3. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ घोष बाबूज वेट कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर एंड स्किन प्रोटीन. तो कितना फ्रैक्शन होगा ये? तो 33% ऑफ 15 यानी 1/3 ऑफ 15, दैट इज ऑलमोस्ट 5 यूनिट्स. और टोटल बॉडी वेट था 100 यूनिट्स का. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वेट कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर एंड स्किन प्रोटीन. तो 5 यूनिट्स आउट ऑफ 100 दैट इज 5%. 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20. सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं आते तो आई अगेन अर्ज यू टू गो टू परसेंटेज सेशन एंड वॉच दैट. Second question says ratio of distribution of protein in muscle to the distribution of protein in skin. मसल प्रोटीन और स्किन प्रोटीन का रेशो पूछा गया है आपसे. तो लेट्स गो बैक टू द पाई चार्ट. मसल प्रोटीन इज दिस, स्किन प्रोटीन इज दिस. तो सिंपली यू कैन से 25/8. इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है. तो ऑलमोस्ट 3.1:1. 8 into 3 अगर 24 होता तो 3:1 हो जाता एग्जैक्ट. सो 3:10 तो नहीं हो सकता, 1:3 नहीं हो सकता, 3.5:1 भी नहीं है और 3:1 नहीं है. तो अप्रॉक्सीमेट आंसर इज ए ऑप्शन बिकॉज 3.1:1 आ रहा है हमारा आंसर. यहाँ पे 3.5 था और 3 था. तो क्लोजेस्ट आंसर इज ए ऑप्शन. अब ये 25:8 मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा अगर आपको समझना हो तो ये 25% था. तो 25/100 ऑफ टोटल वैल्यू 15 यूनिट्स आई थी यहाँ पे हमने देखा था और उसका रेशो निकालना है स्किन प्रोटीन के साथ यानी 8/100 × 15 यूनिट्स. तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. तो
इफेक्टिवली वो 25:8 ही बचेगा, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया था. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिटवीन द लाइन्स. थर्ड क्वेश्चन सेज व्हाट परसेंट ऑफ घोष बाबूज बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ स्किन. तो पूरे वेट का कितना परसेंट स्किन है ये बताना है. वी हैव द ब्रेकअप ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड अदर ड्राई मटेरियल, और फिर प्रोटीन का ब्रेकअप है, उसमें स्किन प्रोटीन की बात करी गई. सो वी डू नॉट हैव इनफ डेटा टू कैलकुलेट व्हाट परसेंट ऑफ body weight is made up of skin. So simply we can say that this cannot be determined using the present data, क्योंकि हमें इसको ब्रेकअप ही नहीं पता है. सो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन says in term of total body weight the portion of material other than water and protein is closest to. In terms of total body weight the portion of material other than water and protein. तो water and protein को हटा दो तो बाकी क्या बचेगा. तो वाटर था 70, प्रोटीन था 15, तो अदर बचा 15, दैट इज 15%. अब यहाँ पे सब फ्रैक्शन में दिया गया है, तो 15% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो. किसी भी वैल्यू को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड इट बाई 100. तो 15/100 दैट मीन्स 5 into 3 and 5 into 20. 3/20 should be the answer. So that is A option. So that was a pretty easy set based on percentage and ratio proportion. तो अगर आपको percentage के concept clear हैं तो this pie chart could have been solved very easily. Now let's move on to the next set of questions. So again there are two pie charts given to you. इस बार वैल्यू भी दे दी गई है आपको. पहला पाई चार्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें टोटल है 160 लाख. दूसरा पाई चार्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन. सो दिस इज 91, 92, दिस इज 90, 91. तो यहाँ पे था 130 लाख का प्रॉफिट, दूसरे में हो गया 160 लाख का प्रॉफिट. अब उसके बाद उसका ब्रेकअप दिया गया है इंटरेस्ट, टैक्स, रिटेन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड डिप्रिसिएशन, दोनों चीज़ में. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस आल्सो. सो अगेन देर आर 4 क्वेश्चन. पहला कहता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन 91-92 इंक्रीज ओवर दैट 90-91 बाय हाउ मच. द इंटरेस्ट बर्डन वाज हायर देन इन 90-91 बाय हाउ मच. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ ऑन एन एवरेज 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज चार्ज्ड ऑन बोरोड फंड्स then the total borrowed funds used by this company in the given 2 years amounted to. अब borrowed funds हमें पाई चार्ट में कहीं नहीं दिया गया, तो let's we need to have a look at this. Anyway, 8th question says the retained profit in 1992, 91-92 as compared to that in 1991 was how much. तो पांचवा क्वेश्चन देते हैं. इट सेज द प्रॉफिट इन 91-92 इंक्रीज्ड ओवर 1991 बाय हाउ मच. तो 1991 का प्रॉफिट था 130 लाख, 91-92 में हो गया 160 लाख. तो कितना इंक्रीज हुआ ये बताना है. तो हमने पहले भी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, परसेंटेज चेंज जब निकालना हो, क्योंकि ऑप्शंस आपको परसेंटेज में दिए गए, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना. तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और उसको डिवाइड कर दीजिए इनिशियल वैल्यू से. ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू. तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो पहली वैल्यू है 91 वाली. तो डिफरेंस कितना आया 30. इनिशियल वैल्यू कितनी थी 130. सो द आंसर हैज़ टू बी 30/130. अब यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है, हमारा आंसर आया फ्रैक्शंस में. तो परसेंटेज की क्लास में हमने आपको फ्रैक्शंस बताए थे. सो 3/13 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 1/13 याद रखिएगा. 1/13 इज इक्वल टू 7.7% अप्रॉक्सीमेटली. तो 3/13 उसका 3 गुना हो जाएगा, 7.7 इंटू 3. तो फ्रैक्शंस याद रखने का आपको यही फ़ायदा हो जाता है कि यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द आंसर रादर देन यूजिंग द परसेंटेज फॉर्मूला. सो दैट विल बी 23.1%. So the approximate answer is A option, 23%, क्योंकि ये approximate value है इस fraction की, not the exact one. So hence the answer is A option. 6th question says the interest burden in 91-92 was higher than that in 92-91 by how much. अब interest देख लेते हैं कितना ज़्यादा है. तो दो values percentage में हैं और दो values आपके exact rupees में हैं. So इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट 40% था पहले,
तो 91 92 में इंटरेस्ट था 40% ऑफ 160 लाख। तो हमने डिस्कस किया था परसेंटेज वाले में कि 1/10 होता है 10%, तो 1/10 हो जाएगा इसका 16 लैक्स। अगर इसको 4 गुना कर दे तो 40% हो जाएगा, यानी 64 लैक्स। सो दैट वाज 64 लैक्स इन 91 92। 90 to 91 में था इंटरेस्ट 30% ऑफ 130 लैक्स। तो इसको अगेन आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका 1/10 हो जाएगा 13 लैक्स और उसका 3 गुना कर दीजिए तो 39 लैक्स। सो यू नीड टू मेंटली कैलकुलेट ऑल दीज परसेंटेजेस। सो 39 से 64 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया? 25 लैक्स का। सो देर इज़ वन ऑप्शन विच सेज दैट इट इज़ 25 लैक्स। इंटरेस्ट जो है वो 25 लाख से बढ़ गया। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। Question number 7 says, if on an average 20% rate of interest was charged on borrowed funds, then the total borrowed funds used by this company in the given 2 years amount to how much? अब borrowed fund आपको कहीं नहीं दिया गया पूरे पाई चार्ट में, लेकिन आपको एक हिंट दिया गया है कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट was charged on borrowed funds, यानी इंटरेस्ट जो है वो 1/5 है borrowed funds का। 20% मतलब 1/5। तो जितना टोटल बोरोड फंड्स था, इंटरेस्ट उसका 1/5 था, और इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास है। इंटरेस्ट एक साल में था 64 लैक्स और एक साल में था 39 लैक्स, और ये 1/5 वैल्यू है बोरोड फंड्स की। तो बोरोड फंड्स कितना आ जाएगा? 5 गुना कर दीजिए इंटरेस्ट को, सीधा सा। तो टोटल इंटरेस्ट था 64 लैक्स प्लस 39 लैक्स, दैट इज 103 लैक्स, और बोरोड फंड्स उसका 5 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट इज 1/5। सो दैट इज 515 लैक्स। तो टोटल बोरोड फंड्स आ गया 2 साल का मिला के 515 लैक्स। सो देर इज डी ऑप्शन विच सेज 515। सो दिस वॉज स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन क्योंकि उसमें बोरोड फंड आपको पूछा गया है जो कि आपके पाई चार्ट में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, बट we can calculate it in terms of the rate of interest. Last question says the retained profit in 91 92 as compared to 90 to 91। तो अब रिटेन प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें दोनों साल का। रिटेन्ड प्रॉफिट एक साल था 20%, एक साल था 25%। 25% मतलब 1/4, 20% मतलब 1/5, 1/5 ऑफ विच वैल्यू 160, क्योंकि टोटल प्रॉफिट था 160 लैक्स। यहाँ पे 1/4 किसका? 130 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 लैक्स, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 32.5 लैक्स। तो यानी पहले साल था 32.5, उसके अगले साल हो गया 32 लैक्स। दैट मीन्स वो कम हो गया 0.5 लैक्स से। तो हाइयर तो नहीं हुआ है, सो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। लोअर हुआ है वो 2.5% से हुआ है या 1.5% से, वो हमें निकालना है। तो अगेन परसेंटेज चेंज हमें निकालना है। तो पहले था 32.5, अब हो गया 32। तो फाइनल वैल्यू इज 32, इनिशियल वैल्यू इज 32.5। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा? डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू। डिफरेंस इज 0.5, इनिशियल वैल्यू इज 32.5। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तो हमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत भी नहीं है। दोनों ऑप्शन चेक कर लीजिए। एक कह रहा है 2.5% है, एक कह रहा है 1.5% है। अब चेक कर लीजिए 0.5 कितना परसेंट होगा 32.5 का। अब 32.5 का अगर हम 1% निकाल लें, सो दैट विल बी 0.32। 1% होता है 1/100, तो इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो 1% इज 0.32। तो 2% वुड बी डबल ऑफ दिस, दैट मीन्स 0.64। हमारी वैल्यू 0.5, दैट मीन्स ये 1% और 2% के बीच में कहीं लाई करेगी। 1% अगर 0.32 है, 2% इज 0.64, तो 0.5 विल लाई इन बिटवीन दीज टू। तो दैट मीन्स 2.5 तो आंसर नहीं हो सकता, तो वी कैन एलिमिनेट सी ऑप्शन। द करेक्ट आंसर हैज टू बी डी। सो बाय यूजिंग दीज ट्रिक्स यू कैन सेव योर टाइम इन कैलकुलेशन। आपको अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। होप यू got some understanding about the pie chart questions। परसेंटेज का सेक्शन ज़रूर देखिएगा,
so that आपको calculation की tricks पता लग जाए. And if you have any doubt regarding any questions or any suggestion you want regarding your preparation, you can mail it to the given email ID. We will again with some new topics. Till then, you can keep practicing and have a nice time.